ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ مقامی دستکاروں کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے درکار اقدامات کرنے پر LG منوج سنہا کا زور۔ رواں برس کی یاترا کے دوران اب تک تقریباً 2,60,000 امرناتھ یاتریوں نے کیے پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن۔ سانبا سڑک حادثے میں 3 بچے اور ایک خاتون جاں بحق، انسانی جانوں کی ضیاع پر LG کا رنج و غم۔ اور نشریات کا قومی دن آج، مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے سماج میں ریڈیو کے مثبت رول کو کیا اجاگر۔ خبریں تفصیل سے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں ریوائول، ریسٹوریشن، پریزرویشن آف اینشنٹ کلچرل ہیریٹیج اسکیم کی مؤثر عمل آوری کے حوالے سے ایکشن پلان کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر LG نے کہا کہ تحفظی اقدامات کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھے جانے کی ضرورت ہے کہ ہماری تہذیب اور کلچرل روایات کی تواریخی حیثیت اور سماجی اہمیت برقرار رہے۔ واضح ہے کہ اسکیم جموں کشمیر میں تمام مقدس اور کلچرل اعتبار سے اہم جگہوں کی نشاندہی کرنے اور ان جگہوں کو تجدید و مرمت اور تحفظ کے دائرے میں لانے کے لیے عمل لائی جا رہی ہیں۔ LG نے محکمہ کلچر کو ہدایت دی کہ وہ ایسی جگہوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ماہرین کی مدد لے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ پروجیکٹوں کی عمل آوری کے دوران شفافیت اور مؤثر نگرانی کے عمل کو بھی یقینی بنایا جائے۔ جموں میں 18 اور کشمیر میں 17 پروجیکٹوں کی مفصل جانکاری کا جائزہ لیتے ہوئے LG نے محکمے کو ان پروجیکٹوں پر جلد کام کرنے کی ہدایت دی۔ واضح ہے کہ ان پروجیکٹوں میں مندر، زیارت گاہیں، گردوارے، قلعے، گرجا گھر وغیرہ شامل ہیں جنہیں ایگزیکٹو کمیٹی نے منظور کیا ہے۔ انہوں نے محکمے کو ڈیجیٹل لائبریری تیار کرنے پر بھی توجہ مرکوز کرنے کے لیے کہا۔ مقامی کاریگروں کی فلاح و بہبود کے اقدامات کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے LG نے کہا کہ مقامی کاریگروں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان کاریگروں کی رہنمائی کے لیے مہارت یافتہ ماسٹر آرٹسٹوں کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ رواں برس کی شری امرناتھ یاترا کے دوران اب تک 2,57,000 سے زیادہ یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دے کر شیو لنگم کے درشن کیے ہیں۔ آج شام 5 بجے تک 7,271 یاتریوں نے گفا میں حاضری دے کر شیو لنگم کے درشن کیے۔ اس دوران بھگوتی نگر جموں کے بنیادی کیمپ سے 2,504 یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ وادی کی اور آیا۔ یاتریوں کا یہ قافلہ بالتر راستے سے پوتر گفا کی طرف جائے گا، جبکہ قومی شاہراہ پر آج صبح ادھمپور سے بانہال تک کئی جگہوں پر مٹی کے تودے گرانے کی وجہ سے پہلگام راستے سے جانے والے 4,549 یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلے کو ٹکری ادھمپور سے واپس بھگوتی نگر کے بنیادی کیمپ کی طرف بھیجا گیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق درشن کے بعد اپنے گھروں کو واپس جا رہے یاتریوں کے قافلے کو سڑک کی خرابی کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے میر بازار میں ٹھہرایا گیا اور پھر موسم میں بہتری اور سڑک کی حالت ٹھیک ہونے کے بعد ان یاتریوں کو جموں کی طرف جانے کی اجازت دی گئی۔ امرناتھ شرائن بورڈ اور جموں کشمیر رورل سینیٹیشن محکمے نے پہلگام راستے سے پوتر گفا تک چندن واڑی، پنچترنی اور دیگر مقامات پر یاترا متر مہم کا اہتمام کیا ہے۔ گفا یاترا کے راستے اور دریائے لیدر کو صاف اور پلاسٹک سے پاک رکھنے کی غرض سے منعقدہ اس مہم میں میونسپل کمیٹی پہلگام کے اہلکار بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ایگزیکٹو آفیسر تفیظ میر نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ میونسپل کمیٹی صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی متحرک ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی نے آج ہندواڑہ میں ورکروں کے ایک روزہ کنونشن کا اہتمام کیا۔ اس دوران پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ جس طرح سے اس پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ انہیں نیشنل کانفرنس اور PDP کی غلط پالیسیوں کا برملا احساس ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی عوام کی پارٹی ہے اور اس پارٹی کا یہی منشور ہے کہ جموں کشمیر کے ہر گھر میں خوشحالی آئے۔ نیشنل کانفرنس کی بارہمولہ کی خواتین ونگ کا ایک روزہ کنونشن آج سوپور میں منعقد ہوا۔ کنونشن کی صدارت خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے کی۔ کنونشن کے شرکاء نے اپنے علاقوں کی تنظیمی سرگرمیوں اور عوامی مسائل کے حوالے سے پارٹی عہدیداروں کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر شمیمہ فردوس نے کہا کہ عوامی مسائل میں کمی کے بجائے دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ انتظامیہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ کنونشن سے خواتین ونگ کی صوبائی صدر انجینئر صبیہ قادری نے بھی خطاب کیا۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی، محکمہ سیاحت اور کشمیر سوسائٹی انٹرنیشنل کے باہم اشتراک سے آج سے بلبل شاہ پارک، راج باغ، سری نگر میں 2 روزہ تصوف کانفرنس کا آغاز ہوا۔ آج پہلے روز کانفرنس میں صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس دوران کئی کتابوں کی رسمی رونمائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر صوبائی کمشنر نے کہا کہ کشمیر میں تخلیقی صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، تاہم وقت تقاضا ہے کہ منفی سوچ کے بجائے مثبت سوچ پر مبنی کتابیں لکھی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ روحانیت، انسانیت اور کشمیریت کے حوالے سے زیادہ کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے۔ تقریب کے حاشیے پر بولتے ہوئے صوبائی کمشنر نے کہا کہ ہر گھر ترنگا ایک رضاکارانہ پروگرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنے گھر یا دکان پر فلیگ کوڈ پر پوری طرح عمل کر کے ترنگا لہرا سکتا ہے۔
मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 21,000 से ज़्यादा नए कोविड मामला सामने आए हैं, जबकि इस अरसे के दौरान 20,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में सरदस्त कोरोना मरीजों के सेहतियाब होने की शरह 98.46% है। इस दौरान मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 201 करोड़ 68 लाख से ज़्यादा कोरोना मुख्तलिफ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। सेहत की वजारत ने बताया कि कल 34,93,000 इस तरह के टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आज शाम जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 557 नए केस की निशानदही हुई है, जिनमें से जम्मू सूबे के 282 जबकि कश्मीर सूबे से 275 मामले सामने आए हैं। बुलेटिन के मुताबिक यूटी में आज सबसे ज़्यादा मामले जम्मू ज़िले से सामने आए हैं, जहां 169 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि श्रीनगर ज़िले में 157 लोग इस वायरस में मुब्तला पाए गए हैं। आज 165 मुतासरीन शिफायाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म केसों की तादाद 2,801 है। सांबा में कल रात पेश आए सड़क हादसे में 3 बच्चों और एक खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि 15 दीगर जख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक हादसा बस स्टैंड के नज़दीक उस वक्त पेश आया जब एक टेम्पो और ट्रक के दरमियान टक्कर हुई। 6 जख्मी अफराद को इलाज मुआलजे के लिए GMC जम्मू मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर जख्मी अफराद को जिला अस्पताल सांबा में तिब्बी इमदाद के लिए दाखिल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस दिलदोज हादसे में इंसानी जानों की ज़िया पर रंजो गम का इजहार करते हुए जाँ बहक अफराद के लवाकिन के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने हादसे में जख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए प्रार्थना की है। LG ने जिला इंतजामिया को जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी है। उधर बांडीपोरा सड़क हादसे में एक नौजवान जाँ बहक हुआ है। ज़राए के मुताबिक 17 बरस के ननी नारा सुंबल के तौसीफ अहमद गुरु नामी स्कूटी सवार को शादीपुरा इलाके में एक ट्रक ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हुआ। अगरचे उसे सुंबल अस्पताल पहुंचाया गया, तहाँ वहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। जाए हादसे से ट्रक ड्राइवर फरार हुआ है, तहाँ पुलिस ने ट्रक को जब्त किया है और बाज़ाबिता मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज शहर श्रीनगर के शिया आबादी वाले जड्डीबल, अलमगिरी बाजार, हव्वल, गुलशन बाग और कई दीगर इलाकों का दौरा किया। मौसूफ ने इमाम बारगाह जड़ीबल में मकामी नुमाइंदों के साथ इजहार ख्याल के दौरान मुहर्रम हराम में दरकार सहूलियात और इंतजाम के हवाले से बरसरी मौका जानकारी हासिल की। मौसूफ ने इमाम बारगाह हसन आबाद में भी दरकार सहूलियात और इंतजाम के हवाले से जानकारी हासिल की। जिला तरक्याती कमिश्नर ने SMC और दीगर मुतल्लिका महकमों को तमाम नाकाबिल कार स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने की हिदायत जारी की। उन्होंने इमाम बारगाहों तक जाने वाले सभी सड़कों को वक्त रहते मैग्डमाइजेशन की भी हिदायत दी। जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियां सचिन कुमार ने आज इंडस्ट्रियल एस्टेट अगलर शुपियां का दौरा करके वहां सड़क को कुशादा करने के अमल का जायजा लिया। मौसूफ ने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ मुलाकात के दौरान उनके मसाइल सुने और उन्हें इस हवाले से जल्द कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। क्राइमशुरा बडगाम में आज निगिनी कल्चरल फाउंडेशन बडगाम के एहतमाम से एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शोरा और कलमकारों के अलावा शेर अदब से उन्स रखने वाले कई लोगों ने शिरकत की। इस दौरान मारूफ शायर फ़कीर अहद भट्ट की किताब चश्मे आब हयात की रस्मी रूनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत मारूफ ब्रॉडकास्टर और अदीब अब्दुल हद फरहाद ने की, जबकि मारूफ ब्रॉडकास्टर सैयद हुमायूं कैसर ने तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान महफिल समा भी मुनाकिद हुई। बदरवा के रहने वाले मारूफ शायर, TV और बॉलीवुड अदाकार सागर सहराई का आज तवील अलालत के बाद 70 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल श्रीनगर के एक अस्पताल में हुआ, जिसके बाद उनकी मैयत को उनके आबाई इलाके ले जाया गया और वहां आबाई मकबरे में सुपुर्द लहद किया गया। मरहूम के नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। सागर सहराई ने विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म शिकारा और दूरदर्शन के कई सीरियलों में भी अपने फन का मुजाहिरा किया। सागर सहराई के इंतकाल पर वादी के मारूफ अदबी और सकाफती तंजीमों ने रंजोगम का इजहार किया है। सागर कल्चरल फोरम सुकरपटन की जानिब से आज एक ताज़ियती इजलास का एहतमाम हुआ, जिसकी सदारत फोरम के सरपरस्त सागर नज़ीर ने की। इजलास के दौरान मरहूम को शानदार खराज पेश किया गया और उनकी अदबी खिदमात को याद किया गया और इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। बदरवा से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ शायर सागर सहराई के इंतकाल पर अदबी मरकज़ कमराज ने गहरे दुख का इजहार किया है। मरकज़ के सदर मोहम्मद अमीन बख्श और जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी ने अपने ताज़ियती पैगाम में गमज़दा कुंबे के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मरहूम की अदबी खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने भी सागर सहराई के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर की जनरल मीटिंग आज श्रीनगर में मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान कश्मीर में सन्नत और तिजारत को दरपेश मुख्तलिफ मामलात उभारे गए। इस दौरान बताया गया कि इन मामलात को
12 सरकार की नोटिस में लाया गया, तहम अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मीटिंग के दौरान बताया गया कि सड़कों की हालत खस्ता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जबकि दस्तकारियों से वाबस्ता लोगों की हालत अभी इत्मीनान बख्श नहीं है। मीटिंग के दौरान सियाती शोबे से जुड़े लोगों और स्कूलों को दरपेश मामलात उभारे गए। वंदहमलार गांधरबल में आज पीर मोहम्मद सईद दिलगीर का सालाना उर्स मनाया गया और उसकी तकरीबात में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस दौरान दरूद अज़कार और खतमातुल मुअज़्ज़मात की मजालिस का भी एहतमाम हुआ। आज नशरियात का कौमी दिन है। साल 1927 को आज के दिन पहली बार मुल्क में बॉम्बे स्टेशन से एक प्राइवेट कंपनी द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के जरिए पहला रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया गया। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो करार दिया गया। 1927 से रेडियो भारत के लोगों की जिंदगी का अहम जुज़ बन गया है। ऑल इंडिया रेडियो अपने नारे बहुजन हिताया बहुजना सुखैया पर पूरी तरह अमल करते हुए लोगों को इतला, तालीम और तफरीह फराहम करता आ रहा है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि आज हम नशरियात का कौमी दिन मना रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया रेडियो के सफ़र और समाजी यकजहती नई समाज की तब्दीली में उसने जो असर डाला है उसका जश्न मनाने का मौका है। नशरियात के कौमी दिन पर ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल विनोद रेड्डी ने अपने पैगाम में सभी अमले को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो ने अपने 75 साल तारीख में अपने दायरे को काफ़ी वसी कर दिया है और मुल्क के तकरीबन हर इलाके में अब की नशरियात सुनी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो की एतबारियत और भरोसे पर हमें फ़ख्र है। महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 28.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।